ٹرمپ کے غزہ پلان پر بڑھتے اعتراضات، کیا منصوبے میں ترمیم کیے جانے کا امکان ہے یا اسرائیل اور حماس میں جنگ جاری رہے گی؟ کیا ٹرمپ منصوبے کا ٹرمپ کارڈ حماس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے امریکہ کا صدر اسرائیلی وزیراعظم کے مطالبات کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے؟ کیا 20 نکاتی پلان سے مشرق وسطی میں 2 ریاستی حل ممکن ہے یا اس کا حال بھی ماضی کے امن معاہدوں جیسا ہوگا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اور نتن یاہو اس منصوبے سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا غزہ کی تعمیر نو کی آڑ میں امریکی صدر مالی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اسرائیل امت مسلمہ کے دل میں گھونپا گیا خنجر ہے، کیا 2 ریاستی حل بانی پاکستان کے بیانیے سے متصادم ہے؟ پاکستان نے غزہ جنگ بندی سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے منصوبے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج قومی اسمبلی میں پالیسی خطاب میں کہا کہ ٹرمپ نے جن 20 نکات کا اعلان کیا ہے وہ منوعن ہمارے نہیں ہیں۔ غزہ دنیا کا قبرستان بن چکا ہے۔ فلسطین سے متعلق پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پالیسی پر گامزن ہے۔ یونائٹڈ نیشن، یورپین یونین، عرب ممالک فیل ہو چکے ہیں وہاں خون بند کروانے کے لیے۔ 8 ملکوں کی طرف جو ڈرافٹ بنا، وہ ڈرافٹ فیصلہ ہوا کہ جی اب اس کو دوسری طرف ایز پر انڈرسٹینڈنگ ہم بھیج دیں کہ جی ہمارا یہ ڈرافٹ ہے ایز اے کاؤنٹر ڈرافٹ ٹو یو۔ جو انہوں نے منڈے کو اناؤنسمنٹس کی، میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں۔ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے براڈر ٹویٹ کی، اس کے جواب میں انہوں نے ٹویٹ کر دی۔ کسی کو اعلان تو نہیں ہونا تھا کہ جی وہ 20 پوائنٹ وہ نہیں ہے جو ہم نے 8 ملکوں نے بھیجے۔ پاکستان کی پالیسی وہی ہے جو حضرت قائد اعظم کی پالیسی تھی فلسطین کے حوالے سے، اور اس میں نہ کوئی تبدیلی تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ ہماری کیا ہے، ہم انڈیپینڈنٹ پیلسٹین، کنٹیگوس، سوورن، ٹوٹل انڈیپینڈنٹ انٹیگریٹی اس کی ٹیریٹوریل، اور اس کے ساتھ القدس الشریف اس کا کیپٹل۔ یہ ہماری ڈیمانڈ تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی، اور اس کو اچیو کریں گے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 21 نکات اور 20 نکات کے منصوبوں میں جس فرق کی بات کر رہے ہیں، برطانوی ویب سائٹ نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے۔ واشنگٹن میں اعلان کردہ منصوبہ اس سے کافی مختلف تھا، جس میں مسلم ممالک نے نیو یارک میں اتفاق کیا تھا، اور یہ ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ امریکی نیوز آؤٹ لیٹ نے بھی کہا کہ اس کی وجہ وہ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کی مداخلت قرار دیتے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ نتن یاہو کی ٹرمپ سے ملاقات کے بعد معاہدے کے نکات میں تبدیلی ہوئی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان ترامیم کے تحت اسرائیلی فوج کی غزہ سے واپسی اب مخصوص شرائط سے مشروط ہے، جبکہ حفاظتی زون قائم کرنے کی تجویز بھی بعد میں شامل کی گئی۔ اس سے پہلے پیش کردہ منصوبے میں اسرائیل کی ریڈ لائنز کے حوالے سے وضاحت کم تھی۔ ادھر اسرائیل مسلسل عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اسرائیلی نیوی نے گزشتہ روز گلوبل فلوٹیلا کی 42 کشتیوں کو قبضے میں لے لیا، اور پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 450 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ فلوٹیلا 31 اگست کو اسپین سے روانہ ہوا تھا، اور رستے میں مزید ملکوں کی امدادی سامان سے لدے بحری جہاز اس قافلے میں شامل ہوتے گئے، اور اس کے بعد اسے قبضے میں لینے اور عملے کو یرغمال بنائے جانے کے خلاف پاکستان سمیت مختلف ممالک میں مظاہرے بھی ہوئے، جبکہ اسحاق ڈار نے کہا کہ مشتاق احمد سمیت تمام پاکستانیوں کی رہائی کے لیے بااثر یورپی ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ فلوٹیلا جو چل رہا تھا اس میں ہمارے ایک سینیٹر صاحب بھی تھے۔ ابھی تک چونکہ ہماری اسرائیل سے کوئی نہ کوئی روابط ہے کسی قسم کا، نہ ہماری کوئی ان سے سفارتی تعلقات ہیں۔ 45 جو شپس ہیں اس میں انہوں نے قریباً 22 کے قریب انہوں نے پہلے 22 کو کیپچر کیا ہے، ان کے تمام لوگوں کو انہوں نے ڈیٹین کیا ہے۔ جب سے یہ پرسوں رات سے نیوز آئی ہے، ہم نے ایک تیسرے یورپین ملک کو انوالو کیا ہے جو انفلوئنشل ہے، ان کے ہم سفارتی پروسیس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ وہاں ان سے رابطہ کریں، ہمارے اس سینیٹر صاحب کو پوری کوشش کر کے ان کو آپ فوری طور پہ وہاں سے ریلیز کروائیں۔ ادھر ایک طرف غزہ جنگ بندی کے منصوبے پر بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اسرائیل اپنی بربریت سے باز نہیں آ رہا۔ گزشتہ روز اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید
53 मासूम शहरी लुकमा अज़ल बन गए हैं, जिनसे खित्ता फलस्तीन में शोहदा की तादाद 66,000 से तजावुज कर गई है। जबकि इसराइल के वज़ीर दिफा ने एक बार फिर फलस्तीनियों को गजा खाली करने का हुक्म देते हुए कहा है कि यह उनके लिए आखिरी मौका है। गजा की सूरत हाल के बायस रेड क्रॉस ने तबाहशुदा शहर में अपनी सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी हैं और अमले को मुंतकिल कर दिया गया है। इससे कबल बैनुल-अक़वामी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भी गजा में काम को रोक दिया था। ट्रंप के गजा जंग बंदी से मुतालिक 20 नकात की बात करें तो इस हवाले से बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने लिखा है कि गजा में मौजूद हमास के रहनुमा जंग बंदी के मंसूबे से मुत्तफिक नहीं और आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार न डालने का ऐलान किया है। हमास के सीनियर रहनुमा मोहम्मद निजाल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि इसराइली मुतालबा हमास फलस्तीनी रियासत के क़याम से पहले गैर मुसल्लह हो जाए, लेकिन ये उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं है। दुनिया की किसी भी मुज़ाहमती गिरोह ने आज़ादी से कबल अपने हथियार नहीं डाले। जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान, वियतनाम, अलजायर, आयरलैंड भी कभी भी मुज़ाहमती तहरीकों से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा आज़ादी से पहले नहीं किया गया। उन्हें वाज़ेह किया कि फ़लस्तीन मुज़ाहमती तंजीम अपने हथियार सिर्फ इसी सूरत में छोड़ेगी जब एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम हो जाएगी। गुज़श्ता रोज़ फ्रांसीसी खबरसां इदारे ने भी लिखा कि दोहा में मिस्र और तुर्किया और कतर के हुकाम से मुलाकात में हमास के एक धड़े ने गैर मुसल्लह होने का इनकार किया था, जबकि दूसरा धड़ा ट्रंप की जंग आज़ादी जमानत पर अमन मंसूबे मानने को तैयार है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप अपने गजा मंसूबे की कामयाबी के हवाले से काफ़ी पुरुमीद हैं और वो समझते हैं कि 7 जंग बंदी मुआहदे करवाने के बाद वो गजा की जंग रुकवाने में भी कामयाब हो जाएंगे, जिसे वो अपनी हैरत अंगेज कामयाबी करार दे रहे हैं। गैर मुसल्लह होने से इनकार के बाद अमीर कतर ने भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता किया और गजा जंग बंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल भी किया। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक उनका कहना था कि ये तफसीलात बताने से वो गुरेज करेंगे क्योंकि हसास मामलात हैं। ट्रंप ने 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने गजा जंग बंदी से मुतल्लिक 21 नकात पेश किए थे, जिससे शुरका ने सराहा और चंद एक तजावीज़ भी दी थी। लेकिन बाद में साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर और ट्रंप के दामाद ने इसमें तब्दीलियां की, जिससे यह प्लान मुकम्मल तौर पर इसराइल के हक और फ़लस्तीन के खिलाफ चला गया। और जब 29 सितंबर को सदर ट्रंप और इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुश्तरका प्रेस टॉक की तो इसने इस बात की तस्दीक कर दी कि इससे सेहूनी रियासत को दानिस्ता फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है और पाकिस्तान ने इस वक्त भी नए मंसूबे के नकात पर हैरानी का इजहार किया था। ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे में जंग बंदी और दूसरे इक़दामात के हवाले से ना कोई टाइम फ्रेम है, ना कोई रोड मैप पेश किया गया है और यह सब कुछ कैसे होगा, जिसकी वजह से बहुत सी चीजें मुबहम और शकूक व शुबहात को जन्म देती हैं। ऑस्ट्रेलिया की मशहूर वेबसाइट दी कन्वर्सेशन ने ट्रंप मंसूबे में 5 बड़े मसाइल की निशानदेही की है, जिसमें नंबर 1 एतमाद की कमी, दूसरा मंसूबा गैर मुतनासिब है जबकि अहम तफसीलात की कमी और चौथा मगरबी किनारे का कोई जिक्र नहीं और पांचवा इसराइल की दाएं बाजू की काबीना इस मंसूबे की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट है। दी कन्वर्सेशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हालिया इजलास के मौका पर जब अमन मुआहदे पर बात हो रही थी तो वहां हमास का कोई नुमाइंदा नहीं था, जबकि दिलचस्प बात यह है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी का भी कोई नुमाइंदा वहां मौजूद ही नहीं था क्योंकि अमेरिका ने उनके वीजे मनसूख कर रखे हैं। BBC न्यूज़ एडिटर ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि यह एक ऐसा मंसूबा है जिसके 2 मुख्तलिफ मानी हैं और तशरीहात भी काफ़ी मुबहम है जो अमन की तरफ कदम नहीं उठा सकता। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने भी ट्रंप के पीस प्लान से मुतल्लिक जब गजा के शहरियों से पूछा तो इस मंसूबा को कैसे देखते हैं तो फ़लस्तीनियों ने कहा कि उन्हें ट्रंप या नेतन्याहू पर भरोसा नहीं। शमाली गजा के रहायशी मोहम्मद मंसूर ने कहा कि वो किसी भी ऐसे मंसूबे की हिमायत नहीं करते जिससे जंग का खात्मा हो और लोगों को जीने दो, हम थक चुके हैं, हम चाहते हैं कि जंग आज खत्म हो, कल नहीं। जबकि इस मंसूबे से मुतल्लिक इसराइल की ऑपोजिशन जमातें नेतन्याहू हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही हैं कि यह मंसूबा फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये एक ऐसा सियासी फरेब है जिसमें फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कान को भी मुस्तरद किया गया। उधर नेतन्याहू की दाएं बाजू की इत्तेहादी जमातों ने धमकी दी है कि अगर जंग बंदी में गजा को ज्यादा रायतें दी गई तो वो इसकी हुकूमत गिरा देंगे। ट्रंप के मंसूबे पर अमेरिका के अंदर भी एतराज़ात सामने आ रहे हैं और डेमोक्रेट्स ने भी इस मंसूबे को अखलाकी तौर पर नाकाबिले दिफा करार दिया है। ट्रंप ही की जमात रिपब्लिकन के सेंटर ने कहा कि इस मंसूबे को पागलपन और जुनून करार देता हूं, जबकि
फलस्तीनी निजात कांग्रेस की खातून रुकन ने भी इसे नस्ल खुशी और इंतहा पसंदाना करार दिया। ट्रंप के इक़दामात और पॉलिसियों की वजह से इनकी मकबूलियत का ग्राफ भी गिर रहा है। डील ऑफ द सेंचुरी से पहले फलस्तीन और इसराइल के तनाज़ा के हवाले से कई प्लान और अमन मंसूबे पेश किए जा चुके हैं, जिनमें 1993 का ओस्लो प्लान, 2000 का कैंप डेविड मुआहिदा, 2007 का आने पाल्मर प्लान और 2020 का अब्राहम अकॉर्ड और इसके अलावा 2008, 2012, 2014, 2021 और 2023 के जंग बंदी के मुआहदे भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद खित्ता फलस्तीन में झड़पों और जंगों का सिलसिला जारी है और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन और इसराइल में अगले साल होने वाले आम इंतखाबात के हवालों से भी ट्रंप और नेतन्याहू के लिए यह मंसूबा अहम है ताकि इनकी कामयाबी और वो सियासी फायदा उठा सके। और इसके साथ साथ जंगबंदी की सूरत में गजा की तामीर नौ पर भी ट्रंप की नजर है, क्योंकि ट्रंप जो अमेरिकी तारीख के अमीर तरीन सदर हैं और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 तक ट्रंप की दौलत 21 खरब 40 अरब रुपए हो चुकी है और अमेरिका के रॉयल स्टेट टाइकून हैं। क्या वो गजा की तामीर नौ के नाम पर तामीराती ठेकों की मद में बड़ा माली फायदा भी हासिल कर सकते हैं?